زمانہ جاہلیت میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا اور آپ سب نے کہا تھا ہوئے یہ بہت بری بات ہے. زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا آپ کسی کو بھی کہیں گے تو وہ کہیں گے جو برا کرتے تھے. ایسے ہی ہے. اب کسی کو بھی بتائیں جی وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, اس دفن کر دیتے تھے, ذبح کر دیتے تھے, پہاڑ سے نیچے پھینکتے تھے, مار دیتے تھے, تو آپ کیا کہیں گے؟ بہت برا کرتے تھے. حضرت ٹرینڈ چینج ہوا ہے, جدید ٹیکنالوجی ہے, اب بھی ہم اپنی بیٹیوں کو روز مارتے ہیں. بس ہم نے تھوڑے سے طریقے مختلف کر لیے ہیں, ہم پڑھ لکھ گئے ہیں اور ذرا مہذب ہو گئے ہیں. وہ لڑکیوں کو زندہ مارتے تھے, ہم اس کو روز گاڑتے ہیں. بھلا کیسے؟ ہاں جی, ہمارا معاشرہ اتنا ظالم ہے کہ بیٹا یہاں مرد لڑکا اپنی مرضی سے ٹھوک بجا کے شادی کر سکتا ہے. بیٹی منہ سے زبان سے بات تو نکال کے دیکھے, چلے ماں سے ہی کیا کہ دیکھے کہ مجھے فلاں کے شادی کرنی ہے, اس کو زندہ نہ ہم گاڑ دیں. ہاں جی, ہمارے ہاتھ میں آئی ہیں یہ کھلونے بیٹیاں, ہم نے ان کو کھلونا سمجھا ہے. خامد اور بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے اپنے وہاں رشتہ کرنا ہے. بیٹیاں شاید ملی اس لیے ہیں, داد کا ساتھ مل جائے یا نان کا ساتھ مل جائے. ماں کی ضد ہے کہ میری بہن نہ چھوٹ جائے, میں نے اس کا رشتہ وہاں کرنا ہے. باپ کی ضد ہے کہ میرا بھائی نہ چھوٹ جائے, میں نے اس کا رشتہ. یہ عورت نہیں ہے, یہ انسان نہیں ہے, یہ زیرو نہیں ہے, یہ تو آپ کے ہاتھ میں ایک کھلونا دے دیا گیا ہے. اس کے کریں فیصلے اور اس سے نہ پوچھیں کہ وہ کہاں شادی کرنا چاہتی ہے. اگر اس نے بات کی تو آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں. یا ہمارے علاقے میں ایک بیٹی نے منہ سے صرف نکالا تھا کہ میں نے وہاں شادی نہیں کرنی جہاں آپ کہہ رہے ہیں. اس باپ نے غیرت نہیں بغیرت بن کر اس کو گولی مار کے مارا اور بتلایا کہ زمانہ جاہلیت کے جانور ابھی زندہ ہیں, اور مصطفیٰ کریم کے آنے کے باوجود, اسلام کا نور آنے کے باوجود, مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم کام وہ کرتے ہیں جو ابو جہل اتبا و شیبہ کر کے گئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کس ہاتھ سے گولی ماری ہوگی اور کیسے ماری ہوگی. ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے, او ہو لڑکوں کو, آپ لڑکے کو ہاتھ لگا کے دیکھیں, چاچے کو, تائے کو, خالہ کو, ماسی کو کہیں کہ جرت ہے اس لڑکے کو ہو کہ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہتی ہوں, کہ میں نہیں کرنی. وہ جب کرتا تو کہتے ہیں ماشاءاللہ کڈا سونا لگتا ہے, بھائی جوانی دے کام ہیں. اور بیٹیوں کی دلالیاں کرتے ہیں ہم, ان کی قیمتیں لگاتے ہیں سامنے بیٹھ کر. کوئی چاچا کہتا میری ہو گئی, تایا کہتا میری ہو گئی, انہوں کوئی ہاتھ نہ لاوے. تمہارا اختیار نہیں ہے, یہ کائنات کے خالق نے اور کائنات کے خالق کے محبوب نے اسے اختیار دیا ہے اور فرمایا ہے اس سے پوچھو جہاں وہ چاہے وہاں اس کی شادی کرو. ہم نہیں کرتے, ہم اسے روز مارتے ہیں. اچھا اس سے بھی بڑا ظلم دیکھیے, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی میرے لفظ سخت ہو جائیں تو. اب ہم دو کام کرتے ہیں. پہلے جی لوگوں سے سن کر بیٹی کو پڑھانا ہے, بیٹی کو پھر اسے بی اے اور ایف اے اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھانے کے بعد اپنے ہی کسی بھتیجے بھانجے نشئی اور چرسی سے بیاہ دیتے ہیں. کہتے ہیں جی اپنے نہیں کجنا تو کینوں کجنا ہے کہ نہیں. پھر وہ ساری زندگی روئے, ساری زندگی آپ کو بد دعائیں دے, آپ کے گھر برباد ہوں, آپ کا سکون ختم ہو جائے. آپ پوچھتے ہیں جی مجھ پہ تویز ہو گئے ہیں, میرے حاسدین پیچھے پڑ گئے ہیں, فلاں نے تویز کی ہے, تو نے تویز خود پہ کیا ہے. رب نے تجھے جنت کی ضمانت بیٹی رحمت کی صورت میں دی تھی, تو اس پہ زحمت بن کے بڑھا اور اس کو جناب بیچ دیا کسی کے ہاتھ. اور کہتے ہیں تو یہ چپ کر جا, میں تیرا باپ ہاں, صحیح فیصلہ کراں گا. آپ کو حضور کے زمانے کی بات نہ سناؤں, آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ خود سے باتیں کر رہے ہیں. سنیے کہ نہیں ہیں جی.
ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੋਰੇ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? आवाज़ नहीं जाती, आवाज़ जा रही है। बड़े मुतमिन होकर ये मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने आपको बेटियाँ नहीं दी क्योंकि शादी अभी आपकी नहीं हुई, रब ने आपको बहनें दी हैं। बहनों के का ख्याल रखने के भी रब करीम ने जन्नत अता फरमानी है। कोई सोच सकता है कि मेरी तो बेटी नहीं है तो मैं क्या करूं? मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया वो अपनी बहन का ख्याल रखे, उसमें भी जन्नत है। अच्छा, ये आपका मूड है अब हदीस सुनने का? लें जी पूरी तवज्जो के साथ। ये मैं नंबर इसलिए बताना चाहता हूँ कि वो आप सर्च कर सकते हैं ना, क्योंकि हदीस बड़ी ज़िम्मेदारी वाली है। ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर हदीस मौजूद है। हदीस का नंबर है 25,557 और सुनने नसाई के अंदर ये हदीस मौजूद है। हदीस का नंबर है 3,271। अब आपने तवज्जो करनी है। अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं घर में बैठी हुई थी तो एक जवान लड़की शर्माती हुई मेरे घर में आई। हजूर घर में नहीं थे तो आके ना मेरे पास बैठ गई, तो बात ना करे। अम्मी जान फरमाती है, मैंने कहा पुत्र क्या हुआ है, बात कर। तो कहने लगे जी बात कुछ अजीब है, इन्ना अबी ज़व्वाजनी इब्न अखी है लियरफ़ा अबी खसीसतहू। मेरे बाप ने मेरे कज़न के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मेरे बाप ने अपने भतीजे के साथ मेरी शादी कर दी है। वो चाहता है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, खूबसूरत हूँ, समझदार हूँ, उसका भतीजा किसी काम का नहीं है तो मैं उसे पालूँ, उसका ख्याल रखूँ। यहाँ हमारे मुआशरे में ये मिसालें मौजूद हैं। कहते हैं जी बरादरी के बाहर बेटी नहीं देनी, बरादरियाँ घरों में आके धरने देती हैं, अपने बेटे पेश करते हैं जो नशई, चरसी और भंगी होते हैं। कहते हैं जी तुम मरते हो तो मर जाओ, ये तेरा बाइकाट करेंगे। बेटी देनी है तो इस शराबी को देनी है। ना बाप फैसला कर सकता है, ना माँ फैसला कर सकती है, ऊपर से उठ के आके चाचे ताए फैसला करते हैं। और जिसने पाला है उसे फैसले का हक नहीं है। तो अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, उसने आकर कहा जी मेरे बाप ने अपने भतीजे के साथ मेरी शादी कर दी है। व अना कारिहतुन, मैं पसंद नहीं करती, अभी रुखसती नहीं हुई, निकाह कर दिया है लेकिन मैं पसंद। अम्मी जान फरमाती, मैंने कहा तेरा मसला तो बड़ा अजीब है, तू ज़रा इंतज़ार कर, हजूर आते हैं तो हजूर की बारगाह में पेश करते हैं। मुस्तफ़ा करीम जाने रहमत, जाने कायनात, जाने दो आलम, जो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए थे, हजूर तशरीफ़ ले आई। अम्मी जान फरमाती, मैंने कहा अपना मसला सामने रखो। तो अर्ज़ कीजिए हजूर माफ़ी चाहती हूँ, मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती, मेरे बाप ने कर दी है वो मेरा कज़न, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती, वो ठीक नहीं है। हजूर ने फरमाया बुलाओ इसके बाप को। उसका बाप आया, फरमाया बता बात ऐसे ही है? कहने लगा जी बात बिल्कुल ऐसे ही है, मैं चाहता हूँ कि हम अपने भाई जुड़ जाएं। ये तो बेटी है, गुजारा कर लेगी। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया बेटी तुझे इख्तियार है, चाहे तो आज निकाह तोड़ दे, चाहे तो चले जा। हाँ जी। और बेटी खड़ी हुई जनाब, मैं कहता हूँ लाखों सलाम उस बेटी के ऊपर। खड़ी हुई कहा कालत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद अजज़तु मा सना अबी, ए रसूलुल्लाह, ए कायनात के वाली, मेरे बाप ने जो फैसला किया है मैं उसी को कबूल करती हूँ, मैं उसी को कबूल करती हूँ। वलाकिन अरदतु अन अअलमा अलिन निसाए फिल अम्र शैउन, मैंने दुनिया को बतलाना था लोगों बेटियों की भी कोई हैसियत होती है। मैंने बारगाह रिसालत में मसला इसलिए उठाया था कि दो जहानों के वाली और नबियों के सरदार की जबान से तुम्हें बतलाऊं, बेटियां कोई चलते फिरते खिलौने नहीं होती कि उठाओ और फेंको और अपने फैसले मुसल्लत करो और इनको
सारी जिंदगी डालो तंदूर के अंदर, जलती रहें, सड़ती रहें, कुड़ती रहें, तुम्हें बददुआएं देती रहें और रोज तुम्हें तुम्हारे ऊपर कुड़ती रहें। मेरे जालिम बाप ने एक दफा भी ना पूछा, फरमाया अर्ज की हुजूर मैं दुनिया को बताना चाहती थी, ये है वो इस्लाम और ये है वो मुस्तफा करीम जो बेटियों को इजाजत देते हैं, बाप निकाह कर भी आए, बेटी पसंद ना करे तो इख्तियार है तोड़कर जहां वो चाहती है वहां निकाह कर जाए। और ये सही बुखारी की भी हदीस है, हदीस का नंबर है 6969। क्या ये किबला हाफिज शबीर साहब तशरीफ लाए हैं, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। ये मैंने हवाला याद करने के लिए अपना ट्रेंड एक बनाया है, तो ये आसान है। हवाला कैसे याद करना जी? 6969। इसको कैसे कहेंगे? 6900 6969 6069 है ना 6969 ये नंबर है जी। ऐसे ये बुखारी की हदीस है। अब एक लड़की थी जी, तो उनकी ना उनके ज़िम्मेदार ने उनकी शादी कहीं कर दी, करने लगे थे, घर में बात चल रही थी, तो उनको वहाँ पसंद नहीं थी। वो ना एक सहाबी रसूल हैं अब्दुल रहमान, उनके पास आई और कहा जी मेरा ये मसला है। तो उन्होंने फरमाया परेशान होने की बात नहीं है। खनसा बिन्ते खिजाम रदी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबिया हैं, फरमान लगे जा उसको बात जाके ना ये बता, वो तेरा मसला हल कर देगी। तो ये गई और खनसा बिन्ते खिजाम को बतलाया जी कि मेरे घर में मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जहाँ मैं पसंद नहीं करती वहाँ मेरी शादी करने लगे हैं। तो हज़रत खनसा बिन्ते खिजाम ने फरमाया मैं तुझे एक हदीस सुनाती हूँ, जाके उन्हें सुना दे। अब यहाँ हम क्या करें जनाब, यहाँ तो कुरान और हदीसें भी एक साइड पे करते हैं, कहते हैं जी मेरे घर का मसला है, तुम कुरान और हदीस सुना रहे हो, ये मेरे घर का मसला है। अल्लाह के बंदे, हर घर का मसला वही हल होगा यहाँ बारगाह रिसालत है। तो उन्होंने जाकर खनसा बिन्ते खिजाम को बतलाया जी ये बात है। उन्होंने कहा जी उन्हें अपने ज़िम्मेदार को जाकर बताओ कि मैं खनसा बिन्ते खिजाम तुम्हें बता रही हूँ, मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरा निकाह हुआ था, मैंने हजूर से जाके अर्ज़ की थी कि मैं वहाँ पसंद। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया तुम्हें इख्तियार है, निकाह तोड़ना है तो तोड़ दो। और सही मुस्लिम के अंदर तो हज़रत अहदीस के ढेर पड़े हुए हैं। मुस्तफ़ा करीम फरमाते अत्सय्यिबु अहक्कु बिनफ्सिहा मिन वलिय्यिहा, जो तलाक याफ्ता या बेवा औरत है, हजूर ने फरमाया उसको पूरा इख्तियार है वो अपनी मर्ज़ी से शादी करे। वल बिक्रो तुस्तअमरो, लेकिन जो कंवारी है हजूर ने फरमाया उससे हर सूरत में पूछा जाएगा। इज़्नुहा सुकूतुहा, अगर आपने पूछा और वो चुप रही तो फरमाया ये उसकी इजाज़त होगी, ये उसकी। तो कुरान और हदीस ने, अल्लाह उसके रसूल ने ये शर्फ अता फरमाई, ये इज़्ज़तें अता फरमाई, ये इख्तियारात अता फरमाई हैं औरतों को, बेटियों को, बहनों को, माओं को, औरत को ये आबरू और इज़्ज़तें अता फरमाई हैं। तो ये आखिरी जुमले हैं मेरे उन लिबरल्स के लिए जो जाल फेंक कर जनाब हमारी माओं और बेटियों और बहनों को वो जो चकाचौंध जाली किस्म की रोशनियाँ, ये रोशनियाँ होती हैं जाली, ये वाली जो ना ये जाली रोशनियाँ होती हैं। भला कैसे? लाइट पीछे से बंद हुई तो ये, सूरज चढ़ा तो ये गई, इनकी कोई हैसियत। तो हर गैर मुस्लिम के मामलात, तहजीबें सारी जाली रोशनियाँ हैं। सच्ची रोशनी सिर्फ वो है जो गुम्बद खजरा से आती है। बस ये तो 4 दिन की चांदनी है हजरत। मेरे मुस्तफ़ा करीम के दीन का नूरे पाक आज भी चमकता है, कल भी चमकता रहेगा, हशर के मैदान में भी चमकता रहेगा। तो जिस इस्लाम ने आपको इतने इख्तियारात दिए हैं उसके खिलाफ ज़बान न खोलें। इस इस्लाम के दामन को पकड़ के रखें, पूरी दुनिया फिर के देख लें, जितनी इज्जत इस्लाम ने आपको अता फरमाई है और कोई अता नहीं फरमा सकता।
اللہ وحدہ لا شریک مجھے اور آپ سب کو اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کا خیال رکھ کر بدلے میں جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔